Okay. He's in a meeting, so he may not be able to join also. Okay. I think we are live. Yes. Namaste, Jimmy, uncle, Jimmy sir. You are one of our Rex Karamveer Puraskar recipient, Jyoti, of 2016, and you could not make it in 2019. But we look forward to talking to you today because you're such a wonderful inspiration for all of us. Thank you so much for coming here and being part of the Rexperience Mondays, as we call them. Thank you, Ritu. Thank you very, very much. And I'm really lucky to have you over here. And thank you very much for making me the conversation over here in a prestigious platform of Rex for Idea. Thank you very much. God bless you. So we stand inspired, and we stand to learn from all the work that you have been doing through the years. So I'd like you to take us through your journey of first innings and the second innings that you call. And your second innings are so full of inspiration. So take us through that journey. Okay, ma'am. So first of all, I'll introduce myself. I'm Jimmy Dodi, Parsi, Zoroastrian, 82 running, and 82 not out, but still nature is there, so I have to respect the nature. So anyway, I'm from Navsari, Gujarat, and due to my fact, I belong to a middle class family. Due to financial crisis, I could not study more after passing my SSC in 1957. Soon after, I started hunting for a job and got one in railway at Jamnagar. जिमी सर, आप थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं है मेरे को. आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं, आप पास आइए थोड़ा. हाँ. Okay, is it okay? Now it is good. It's okay. यहीं पे रहिए. Okay, so let's start from first again. नहीं, आप जहाँ से आपने रोका था वहीं से स्टार्ट करिए. So I belong to a middle class family. Due to financial crisis, I could not study more after passing my SSC in 1957. Soon after, I started hunting for a job. I got one in railway at Jamnagar as a casual labor at ₹2 per day. This went on for a year. Thereafter, I got a job in Rajkot Civil Court as a section writer. And after 2 years, my first training started in Central Bank of India as a typist in 1964. From where I retired in 1999. My first training ended in November 1999 when I retired from Central Bank as a manager. Immediately from December 1999, I started my second inning with Dignity Foundation. Here, I would like to thank Dr. Shiru Srinivasan for being my guide and mentor. I started as a volunteer and now I am as a chief dignitarian. As a volunteer, I used to prepare ID cards for senior citizens on behalf of Government of Maharashtra through Dignity Foundation. We used to do counseling, companionship, and any help required by senior citizens. So we used to go to senior citizen house. If they required to pay their bills, we used to do that. Bring medicine for them, grocery for them, vegetable for them. And this is what we were doing when we were getting a call from our head office. Dignity Foundation is an NGO that has been working for the cause of senior citizens in India for over 20 years. Dignity Foundation deals with the problems of senior citizens in India, irrespective of their caste, creed, and economic status. Headquarters at Mumbai and chapters at Calcutta, Chennai, Bangalore, Pune, and Delhi. Their main activities are Dignity Dialogue, monthly magazine, which covers all the issues pertaining to senior citizen, Dignity Helpline, ration for poor elderly, daycare center, dementia daycare center at Chennai,
many more for senior citizens. This is what my first Dignity Foundation, where I started my second career with the help of Dr. Shiru Srinivasan. Yeah. So, Jimmy sir, I'd like to ask you one thing before we begin forward. Yeah. I want you to tell us that, the work that you have been till now telling me says dignity. Yeah. The word dignity. And also you told me you started your work as a casual labor. Yeah, yeah. 3 a day. And there's a lot of dignity of work there as well. You may be whoever, you can start working wherever, but there's a lot of dignity in that. So I want you to tell us, and I also want you to talk about it to the people listening in, कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. अगर आप उसको शिद्दत से, उसको प्यार मोहब्बत से और उसको डेडिकेशन से करें. So tell me about that part, about, because there's such a lot of learning in that. And also आप कितने प्यार से इस बात को शेयर कर रहे हैं कि आप कैजुअल लेबर थे और उसमें भी डिग्निटी है. Exactly. This is why I wanted to tell you too, that जब मजबूरी आती है तो हम बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. वैसे हर एक मजबूरी के अंदर हमको काम करना पड़ता है, लेकिन वो काम करते करते भी हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है. और फिर हम उन लोगों के बीच में हम आते हैं जो लोग कौन देते हैं कि दे आर रियली रिक्वायर्ड योर हेल्प. तो ये डिग्निटी के अंदर मुझे ज्यादा पसंद आया. दूसरी बात है कि जब मैं सेंट्रल बैंक में रिटायर हुआ, दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन द डेस्क ऑफ सीनियर कस्टमर सर्विस. अभी कस्टमर सर्विस के अंदर हमारे पास रिटायरीज हम लोग आते थे, और हमारे पास ऐसे बहुत से सीनियर सिटीजन आते थे, ऐसे फैमिली पेंशनर आते थे जिन लोग के हस्बैंड या उनकी वाइफ गुजर चुकी थी. तो एट दैट टाइम आई वाज फीलिंग सो सिंग फॉर देम कि ये इतना सब हो रहा है, तो रियली वी हैव टू डू समथिंग फॉर देम. मैं उन लोग का फॉर्म भर देता था, उन लोग के लिए नॉमिनेशन करता था, उन लोग के लिए काउंसलिंग करता था. ये सब चीज मुझे आ रही थी, ये सब इनके अंदर बैंक के अंदर. तो ये बैंक के अंदर से जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत सीखा वो मैंने डिग्निटी के अंदर ट्रांसफर कर दिया. एंड देन आई वाज वेरी हैप्पी. एक मन में एक दूसरे शब्दों में कहेंगे कि एक इच्छा होती है, एक मन में धगस होती है कुछ करने की, और वो पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन के लिए. तो आई वाज वेरी मच इन्वॉल्व इन सीनियर सिटीजन एक्टिविटीज आफ्टर डूइंग दैट जॉब ऑन सेंट्रल बैंक. और ये सब कुछ मुझे डिग्निटी फाउंडेशन में मिल चुका. और इसमें आपका भी एक बहुत पावरफुल एलिमेंट है, दैट इज दैट you've risen. आपने शुरू कहाँ से किया और आप कहाँ पहुंचे, पर आप वहां पहुंचकर भी आप भूले नहीं कि आपको थोड़ा सा सोसाइटी को वापस भी देना है, थोड़ा सा लोगों के लिए कुछ अच्छा भी करना है. बट जिमी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस टाइम में जब हम कोविड के टाइम्स में बैठे हैं, आप यूथ यंग लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आपने हर तरह का काम भी किया है और आप ऊपर भी बढ़े हैं, और फिर आपने बहुत सारे लोगों के लिए वॉलंटियरिंग काम भी किया है, पर उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला आपने जो कहा. तो आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे जो अभी जिनके पास शायद जॉब नहीं है, कॉलेज आने को नहीं हो रहा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट शुड दे बी डूइंग एंड व्हाट शुड दे नॉट फॉरगेट? बिकॉज आपकी 82 इयर्स में भी अभी तक आप काम कर रहे हैं, अभी तक अपनी एनर्जी को शेयर कर रहे हैं टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. सो टेल मी अबाउट इट. आज के युवा वर्ग भी बहुत ही खूबसूरत है. मैं उन लोग के लिए बहुत ही तारीफ करूंगा. एक जमाना था जब ओल्डीज के लिए बोला जाता था कि डस्टबिन है, या उन लोग को कहा जाता कि यू आर गुड फॉर नथिंग. लेकिन आज की न्यू जनरेशन ये सब चीज एक्सेप्ट कर चुकी है, और उन लोग ने कहा है कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं ओल्डीज के लिए. तो ये मैं आपको आगे मेरा जब पुष्पमा फाउंडेशन के अंदर जो मैं काम कर रहा हूँ अभी एज एन एडवाइजर, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन के कॉन्टेक्ट के अंदर आज की युवा जनरेशन किस तरह से काम कर रही है. और ये पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी हम तो इन लोग के साथ भी मिले जुले हैं. हमारा करोके का कार्यक्रम चलता है म्यूजिक का, उसके अंदर उन लोग भी भागीदार होते हैं.
और हमारे साथ उन लोग भी गाना बाना गाते हैं, और उन लोग दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ विद अस। उन लोग का एक कड़ी जुड़ चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेंबर्स हैं उनके सब लड़के लड़की लोग भी हमारे साथ पे आते हैं, हमारे बाग में, हमारे पुष्पमा फाउंडेशन में, और वो देखते हैं कि किस तरह से हम ये खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो यू आर, उनको भी बहुत सीखने को मिलता है। यस यस, वेरी, Experience of the old people, young people learn from that. या इन लोग कॉलेज स्टूडेंट आते हैं, उन लोग का एक चैप्टर होता है लाइफस्टाइल ऑफ सीनियर सिटीजन। दे कम ओवर देयर एंड दे लर्न लॉट ऑफ थिंग, दे ब्रिंग बिग क्वेश्चनरीज, और हर एक क्वेश्चन का उन लोग आंसर हमारे मेंबरों से लेते हैं। उन लोग को 50 मेंबर्स लिया, 16 मेंबर्स लिया, और दे गेट द गुड मार्क्स आल्सो फ्रॉम द कॉलेज। तो ये सब वंडरफुल, वंडरफुल। जिमी सर, आप मुझे ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस वॉलंटियरिंग का क्या रहा और आपने क्या सीखा उससे, और आप जो लोग सुन रहे हैं उनको वॉलंटियरिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? वॉलंटियर के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ वॉलंटियर, आप एक बार अगर वॉलंटियर बन गए तो आपको बहुत से कुछ डेडलाइंस आती है और कुछ गाइडलाइंस आती है, वो देखना चाहिए। I had an opportunity to attend workshop of Mr. अपना एक फर्स्ट क्लास अध्यक्ष को भी नाम भी बोल रहा हूँ, कोई लेकिन बात नहीं। उनका जो वर्कशॉप था वहाँ उन्होंने बताया था कि एज अ वॉलंटियर, अगर इफ यू आर वर्किंग फॉर सीनियर सिटीजन, यू शुड बी अ गुड लिसनर, यू शुड बी अ गुड लिसनर। तुम टॉपिक के लिए बोलोगे, 50 साल बोलोगे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इफ यू आर रियली अ वॉलंटियर, you have to be a good listener. Sit beside a senior citizen, listen to them, they will feel so happy and all. तो ये सब चीजें के बारे में हम लोग ने सीखा हुआ है। तो this is the thing which I wanted to tell you. Okay, now that time has changed. Time has changed. We are also thinking that way. One day we also become senior citizen. आज गवर्नमेंट में कितनी चीजें आ रही हैं। आज ही हमने एक नया ये आ गया था जो मैंने मार्क किया था कि सीनियर सिटीजन के लिए एक दिल्ली लाइन आ रही है, और उन लोग भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम करने वाली है। मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगा। तो ये न्यू जनरेशन के लिए मैं कहूँगा, एक बात आती थी कि हमेशा जो है न्यू जनरेशन के लिए एक नेगेटिव अप्रोच रहा है। अभी आप व्हाट्सएप पे देखेंगे या फेसबुक पे देखेंगे तो एक नेगेटिव अप्रोच, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। से दे हैव आल्सो गॉट लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। अगर एक माँ बाप अपने एक माँ बाप के साथ में एक लड़का अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑफिस में जाएगा, या उनकी एक बहू सुबह से ही काम में लगे होगी, तो उनको टाइम रहता नहीं है अपने ओल्डी का संभालने के लिए। लेकिन उसके लिए हम ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई उन लोग दे आर नॉट गुड, दे आर ऑल्सो वेरी नाइस एंड दे आर ऑल्सो वेरी काइंड एंड ऑल। आज टू बी वेरी फ्रेंक, सबकी बात तो जाने दो, मैं खुद मेरी बात करता हूँ कि नाउ आई हैव लॉस्ट माय वाइफ, I had an heart attack also, and now my son, my daughter-in-law, whom I consider as my daughter only, and my granddaughter, they are taking utmost care of me. But that because I have done something good for them also. तो ये give and take का मामला रहता है। राइट, राइट, राइट। सो जिमी सर, आपने वॉलंटियरिंग के बारे में बोला, और हम रेक्स करमवीर में बोलते हैं कि वॉलंटियरिंग इज अ लीडरशिप लेसन। अगर आप वॉलंटियरिंग करते हैं तो आपके को एक लीडरशिप लेसन मिलता है, क्योंकि जब हम वॉलंटियरिंग करते हैं हम ग्रास रूट में जाके जो चीजें हमें नहीं पता होती वो हम हैंड्स डाउन लर्न करते हैं। और जब हम हैंड्स डाउन लर्न करते हैं स्पेशली सोशल कॉजेस के लिए, तो हम दूसरे की तरफ एम्पथाइज कर पाते हैं और हम दूसरे की पीड़ा को, दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और फिर उसका इनोवेटिवली सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि जब वॉलंटियरिंग बच्चे करते हैं, यंग लोग, तो वो ज्यादा अच्छे लीडर्स बनते हैं और ज्यादा अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं, और फिर वो अपनी लाइफ में हर काम जो करते हैं वो थोड़ा सा उसमें से, जैसे आपने कहा कि आपने भी बहुत कुछ अच्छा किया, तो अगर आप 10 कमा रहे हैं तो आप 5 या 4 या 2 सोशल कॉज के लिए या दुनिया को एक अच्छा बनाने के लिए दे पाने की क्षमता रखते हैं और दिल रखते हैं। Very good, perfectly right, perfectly right. या बिकॉज एक तरह से आप लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं
कि आप ये कर सकते हो एज अ वॉलंटियर, जिसमें आपको वापस पैसे तो नहीं मिलते पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उस सीखने की का कोई मोल नहीं होता, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि उसको हम मनी में कभी भी तोल नहीं सकते। नहीं, उसमें मैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है। अगर हम बिल्कुल। एक अच्छा काम करके आए या एक हमने वॉलंटरी की और हमने किसी के लिए कुछ किया, तो हम घर आएंगे रात को सोते तो फिर हम ये सोचेंगे कि आज कितना हमको खुशी मिल रही है, आज उनके चेहरे पे हमने एक हंसी हमने दे के आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। that is a really that volunteer ऐसा ही नहीं है कि पैसा लेके वॉलंटियर बनो या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लो या एनजीओ में तुम जाओ और वहाँ पैसे के लिए नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वॉलंटरी मतलब वॉलंटरी का वर्ड ही इनका मीनिंग ही ऐसा है जो यस। निस्वार्थ न आप कुछ काम करे। सेवा करें, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो आप मुझे जिमी सर ये बताएं कि आपने जब आपकी रिटायरमेंट हुई तो आपको क्यों ये लगा कि आपको अपने आप को यूजफुल बनाना है, अपने आप को बिजी रखना है, और सोसाइटी के लोगों के लिए कुछ करना है, ये नीड क्यों लगी आपको? मैंने जब रिटायर हुआ था तब मैंने बहुत से हमारे जो हमारे फ्रेंड थे जो रिटायर हुए, मैंने उन लोग को देखा। उन लोग ने ऐसा कहा आज अब तो 20 साल 25 साल नौकरी कर ली, 30 साल नौकरी कर ली, 35 ईयर्स। मैंने भी 35 ईयर्स मैंने प्रैक्टिकली नौकरी की, लेकिन उन लोग का आइडिया था 25 तक हमने बहुत काम कर लिया, अभी हम आराम से बैठेंगे और अपना जिंदगी के जो मौज शौक हमने आज तक नहीं किए वो करेंगे, फॉरेन टूर करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हमने देखा तो उनको ऐसा लगा कि जिंदगी के अंदर सब यही मकसद है आदमी की कि खाओ पियो मजा करो करके। और ये भी बुढ़ापे के अंदर ये चीज बहुत ही तकलीफदायक होती है, क्योंकि जब ये स्टेज पे आते हो तभी यू एज आई टोल्ड यू कि हमको नीचे भी जवाब देना पड़ता है। और वो टाइम के ऊपर अगर हमारे साल को हमने एक्टिव नहीं रखा तो फिर वो कुछ काम का ही नहीं रहता है। और वैसे आदमी को मैंने देखा है वो अभी आज पलंग पे पड़े हुए हैं या फिर शराब के नशे में पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है रिटायरमेंट के बाद बिजनेस के बाद कहीं भी रहेगा। आज हमारा पेंशन पेंशन आता है, मैं बैंक पे काम करता हूँ, पेंशन आता है, पेंशन का जो रकम मिलती है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। अभी पेंडेमिक जो आया वहाँ हमने इनके हीरो बनने के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमने ये सब गुप्त दान हमारा खाता था जो हमारा जो पेंशन आता था वो। तो यहाँ हम लोग ने कोविड हीरो ये, लेकिन उससे हम सब दूर रहते हैं। ये सब चीज कोई प्रशंसा के लिए या कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं होती है, एक मन की खुशी होती है जो हम किसी को दान देते हैं। ट्रू 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 ट्रू। और आपने बहुत बहुत सही बात कही कि जब हम वॉलंटियरिंग करते हैं और जब हम गिव करते हैं, जब हम जॉय ऑफ गिविंग देते हैं, और उसमें रियली जॉय होता है। जॉय ऑफ गिविंग मूवमेंट जो जेरी ने स्टार्ट करी थी और रेक्स करमवीर की मूवमेंट अब वर्ल्ड मूवमेंट बन चुकी है, उसमें यही कहा है कि जो जॉय ऑफ गिविंग, दैट जॉय गिव्स यू सो मच ऑफ पीस ऑफ माइंड, सो मच ऑफ कंटेंटमेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी, जैसे आपने कहा। बिकॉज नो मैटर आपके पास कितना पैसा है, क्या कुछ है, अगर आपके पास कंटेंटमेंट नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो वो कभी भी किसी काम का नहीं। और उसी की बात आप कर रहे हो। नहीं, दैट इज ट्रू। अब ये आपने जॉय ऑफ गिविंग की बात कही, अक्टूबर का होता है, 1 अक्टूबर से ये रहा है। और ये अक्टूबर वी आर सेलिब्रेटिंग। हमने यहाँ मदर टेरेसा का आश्रम है यहाँ पे शांति धाम के नाम से। वहाँ फिजिकली हैंडीकैप और मेंटली डिस्टर्ब बच्चे लोग या इन लोग के लिए एक होम रखा है। हम लोग 1 अक्टूबर को वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे हमारा पूरा करोके का सिस्टम है, वो लेके जाते हैं, हमारे गाने वाले लेके जाते हैं, हम लोग उन लोग के लिए खाना लेके जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कुछ मेंबर है जिन लोग की दुकानें हैं, वहाँ से वो ग्रोसरी भी लेके आते हैं टेम्पो के अंदर, और हम लोग वहाँ जाते हैं और भी एंजॉय उन लोग के साथ डांस करते हैं। उन लोग के हाथ पैर बिल्कुल ये है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ डांस करने में हम लोग की कुछ भी खुशी मिलती है कि बोलने की बात नहीं। तो जॉय ऑफ गिविंग आप जो बोल रहे हैं वो हमने एक बार नहीं, ऐसा 2-3 बार हम लोग ने कहा। एक बार आदिवासी गर्ल्स थी, उन लोग के में गए थे,
और वहाँ हम लोग ने स्कूल फीस उन लोग की थी, उन लोग के लिए किताब थी, वो सब हम लोग ने वहाँ डोनेट की थी। और उन लोग के साथ भी हम लोग ने बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारी थी। मतलब वो शाम हमारे लिए बहुत ही यादगार शाम थी। तो बिल्कुल गिविंग के लिए भी ट्रू। अगर आप बोल रहे हैं कि आपके लिए वो शाम इतनी यादगार थी, तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए वो शाम कितनी वैल्यूबल थी। वैल्यूएबल इतनी थी कि उन लोग ने हमको तभी इनविटेशन दे दिया कि अभी अगले साल भी आप लोग जरूर से आ जाइएगा हमारे पास, तो हम लोग यस को थोड़ी बहुत यस खुशी मिलेगी। और हम यस लोग एंड कहते हैं yeah and we at Rex say the joy of giving is joy of living, करेक्ट करेक्ट because the करेक्ट true joy of living is in giving. करेक्ट करेक्ट। और ये चीज हमने दिग्विजय फाउंडेशन में भी की थी। हम लोग दिग्विजय फाउंडेशन में भी जॉय ऑफ गिविंग के लिए हम लोग जाते हैं। ऐसे स्लम एरिया के जो बच्चे लोग हैं उन लोग के लिए यूनिफॉर्म हम लोग इकट्ठे करते हैं। उन लोग को ये देते हैं, आप लोग का उन लोग को खाना पीना बनाते हैं, नाश्ता देते हैं। और वी एंजॉय वेरी मच विद दोस स्मॉल टिकट्स आल्सो। जो लोग के पास पहनने के कपड़े भी नहीं है उन लोग को स्कूल बैग हम लोग ला के देते हैं। तो ये सब चीज जॉय ऑफ गिविंग के हम लोग ने ऐसे ये किया हुआ है कि हम लोग यहाँ से जॉय ऑफ गिविंग का हम लोग एक ये बनाए, रूट बनाए कि जहाँ कहाँ पे जाने का जहाँ हमारी जरूरत है। क्योंकि आज ऐसे है ना कि पैसे आदमी लोग के पास पैसे भी है और उन लोग के दे भी देते हैं, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं रहता है। सी गिविंग इज एब्सोल्युटली अपना मन से एक बोझ उतारना जैसा रहता है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट करना, अंदर अपने आप में जाना और अंदर उन लोग की खुशियां देखना पर्सनली, वो एक बड़ी बात है। आपने बहुत ही उम्दा बात बोली, और ये मैं बात ड्रॉ करना चाह रही थी, बिकॉज ये लर्निंग ड्रॉ करना चाह रही थी आपकी बात से। क्योंकि आपने दो बातें बोली। आपने एक बात बोली गुप्त दान, कि चुप करके आपने दिया, आपको कोई जरूरत नहीं कहीं पे मेडल लाने की, कहीं पे पोस्टर बनवाने की, कहीं पे नाम लिखवाने की कि मैंने दिया। दैट इज रियली, दैट इज द रियलिटी, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी डन। और दूसरी आपने बात बोली कि जस्ट डोंट गिव, मेक अ डिफरेंस, इन्वॉल्व योर सेल्फ। एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जेरी ने एक आर्टिकल भी लिखा है कि जॉय ऑफ गिविंग को कितना उसकी जो अब मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड बन गई है, उसको बिल्कुल अपभ्रंश कर दिया, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया है। क्योंकि द रियल जॉय ऑफ गिविंग इज व्हेन यू गिविंग फ्रॉम द हार्ट, एंड यू डोंट हैव टू गिव बिकॉज you want your name on some poster, or you want your name in the newspaper. And also, if you can really give without knowing anything and without bringing yourself forward, that is the biggest giving. And the second thing that you said is involve yourself. And because the minute we involve ourselves, we bring the human factor within. Because money से important है वो human factor, वो resonance, वो synergy, वो sharing, वो real caring, जिससे जिसको हम empathy बोलते हैं, करेक्ट to be able to relate to the other person's trauma or whatever they are going through, and to be able to help them there, not just sympathizing with them. आप उसके बारे में क्या बोलेंगे, empathy के बारे में, कि वो बहुत जरूरी है? नहीं, क्योंकि क्या है, उन लोग की sympathy मतलब उन लोग की जगह पे हम अपने आप को खड़ा कर दें, उनकी जगह पे हम लोग अपने आप को खड़ा कर दें, देन ओनली वी कम टू नो कि उन लोग की क्या फीलिंग हो रही है, उन लोग को क्या चाहिए। अभी फनी पार्ट तो मैं दूसरे हम लोग एक में गए थे, एक ओल्ड एज होम में गए थे। अभी हर एक की इच्छाएं कुछ अलग रहती है। हम हमारे घरों के ग्रुप को लेके गए थे और हम लोग ने वहां जाके गाने गाने भजन और ये सब गाना शुरू कर दिया वहां पे। एक लेडी केम फॉरवर्ड एंड से, हमारे यहाँ जितने लोग आते हैं वो सब भजन ही गाते हैं, आप कोई रॉक एंड रोल वाला गाना क्यों नहीं गाते हो करके सी वो पूरा ये जो समझने की जो शक्ति है और समझने की जो अभी चल रही है वो इस तरह से। तो एमपीजी का मतलब हमको उनके ही अंदर जाके देख रहे कि व्हाट दे वांट एक्चुअली। मतलब डिमांड एंड सप्लाई का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमको यहाँ जानने को मिलता है कि उन लोग का डिमांड क्या है। अभी उन लोग ऐसे सीनियर सिटीजन हो गए कि मैडम हर एक लोग को यही बोलते हैं कि हम माला लेके बैठ जाए भजन करें, पर ये नथिंग है दैट सर, हमारे मन में भी इच्छाएं हैं, हम लोग भी जीना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल तो वो हम लोग ने वहां से
See, everything we learn from all these things. ये वॉलंटियरिंग बताया ना, तो वॉलंटियरिंग के लिए बेटा ऐसा है कि हम जब तक उन लोग के अंदर अंदर झांक के नहीं देखेंगे, तब तक वी वोंट नो कि वॉलंटियर का क्या असली मतलब है और हमें क्या करना चाहिए. वो मैंने आपको कहा, दैट इज चार्ल्स पिंटो. चार्ल्स पिंटो जो है, उनका वर्कशॉप गए थे, उनने बहुत ही अच्छे ये सब बात कही थी. तो ये बात यहाँ भी आती है कि हम लोग उनकी बातें सुने, हम लोग Yes. सुने. हम नहीं बोला करें कि भाई हम ये करते हैं वो करते हैं, तुमको ये करने का है वो करने का है, यहाँ जाने का है मंदिर जाने का है पूजा करने का है. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बी साइलेंट, मुंह बंद करके उनकी बातें सुने और उनकी बातें सुन के उनके लिए कुछ आप कर सके. दैट इज व्हाट. या सो अगेन जिमी सर, आपने बहुत अच्छी दो बातें बोली है. एक आपने जो शुरू में बोला था, एज अ वॉलंटियर स्पेशली फॉर द सीनियर सिटीजन्स, यू गॉट टू बी अ गुड लिसनर. आपको लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे रखने चाहिए. बिकॉज हम रेक्स करमवीर में ये भी बात करते हैं हमारे मोजोश इंस्पिरेटर में कि लिसनिंग इज एन आर्ट एंड अ क्राफ्ट. Perfectly. It's an art and a craft, because and it's also a learning, because when you are listening you are learning. And as you said, when you listen to them, you learn what they want, not what you want to give them. करेक्ट. और इसमें दूसरा क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है. जब तुम बोलते रहते हो और वो बोलते रहते हैं, तो कुछ पार्ट मिस हो जाता है. मतलब व्हाट दे वांट टू से वो तुम मिस करते हो और अपनी बातें ही उन लोग को बताते हो. तो उन लोग की बातें तुम सुनने को तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता. सो इफ यू आर ए गुड लिसनर, उनकी बातें सुनो और उनकी बातें सुन के उनके ऊपर एक्ट करो. या सो ये बात तो आई थिंक हर रिलेशनशिप में, हर काम में भी मायने रखती है. दैट लिसनिंग is always good for you, and as they say that silence is gold. And only when you're silent and you're listening, only then you can bring the gold and the learning out of it. एक और बात आपने जो बोली है कि हम लोगों के सोसाइटी में एक सोशल कंडीशनिंग है, एक माइंडसेट है कि जब थोड़ा एज हो जाती है तो ये सेट ऑफ एक्टिविटीज ही करनी चाहिए, ये सेट ऑफ ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए, ऐसा सब कुछ करना चाहिए. तो उसको ब्रेक करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? यहाँ है हमारे यहाँ क्लब है, सीनियर सिटीजन पूरा ऑर्गेनाइजेशन है. उन लोग बरमूडा पहन के भी आते हैं, उन लोग स्विमिंग करते हैं, उन लोग डांस करते हैं. मैं बाद में बात करता हूँ कि हमारे जो दादा दादी पास, जिसकी मैं फाउंडेशन में जो मैं एडवाइजर हूँ, वहाँ सीनियर सिटीजन के लिए डांस क्लासेस है और वो लोग जाके डांस करते हैं. मतलब उन लोग के लिए कोई बैरियर नहीं है कि तुम सीनियर सिटीजन हो गए हो इसलिए तुम्हारे पास अभी कुछ रहा नहीं है. They enjoy themselves in a lot of way. उन लोग अभी दूसरा ये सब चीजें आमिर खान शो के अंदर बताया था, बट जेरी इज नॉट हैप्पी विद आमिर खान. ऐसा मैंने एक उनके सीरियल के अंदर सुना हुआ था. लेकिन हमारा इंटेंशन जो सत्यमेव जयते के अंदर हमारे पूरे प्रोग्राम हमने बताया था, उसके अंदर हमारा इंटेंशन सिर्फ वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को बताने का था कि सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत कुछ करने का बाकी है. उन लोग को भी मन के अंदर बहुत इच्छा है, उनकी टैलेंट है. तो वन थिंग हम कह रहे हैं के बारे में कि एक मतलब हमारे यहाँ एक मेंबर आते हैं, 10 मेंबर आते हैं, एक मेंबर गाना गाता है तो दूसरा मेंबर सोचता है कि उनसे अच्छा गाना मैं गाता हूँ. तो वो उनकी टैलेंट है जो छुपी थी इतने सालों तक, जो घर में वो नहीं गा सकते थे, बाथरूम में भी नहीं गा सकते थे, वो धीरे धीरे बाहर आने की शुरू होती है. उन लोग के लिए कैरम, हमारे यहाँ कैरम है. कैरम हम लोग बचपना में देखे थे, उनके बाद उन लोग को देखा नहीं था. अभी सीनियर सिटीजन आके कैरम, उन लोग बैडमिंटन खेलते हैं, उन लोग IQ भी टेस्ट करते हैं. मतलब दे आर एंजॉयिंग इन दैट फुल फॉर्म. मतलब उन लोग का ये सीनियर सिटीजन का जो टैग लगा है ना, वो टैग उन लोग ने निकाल दिया है अपने मन में. वंडरफुल वंडरफुल, बिकॉज लाइफ इज ओनली फाइनाइट, उतना ही लाइफ है और उसको अच्छे से जीना और मीनिंगफुली जीना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक एज यू एज यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, and that is the experience which is a learning for all of us. जिमी जी, आपको कितनी देर हो गई, कितना आफ्टर योर रिटायरमेंट आपको कितने साल हो गए
सोशल वर्क करते हुए? 20 years, 1999 में रिटायर हुआ। हम्म Immediately I joined Dignity Foundation. Dignity Foundation के साथ में फिर मैं पुष्पमा फाउंडेशन में आया। पुष्पमा फाउंडेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया। हमारे जो बताइए के बारे में भी, वहाँ भी उसके बारे में भी बताइए। हाँ, पुष्पमा मैं पुष्पमा फाउंडेशन के लिए मेरे पास सब ये पूरा है, मैं आपको सुनाता हूँ, कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। मेन चीज तो ये हमारी सीनियर सिटीजन का पॉपुलेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट है। According to population census 2011, there are nearly 102 million elderly persons aged 60 years or above in India, 53 million females and 51 million males. A report is the United Nations Population Fund and sorry, India suggests that the number of elderly persons is expected to grow to 173 million by 2026. राइट। Young generation कम से होंगे और old generation ज्यादा हो जाएगी। As corporate bodies, they want senior citizens to come to their company and work for them. क्योंकि यहाँ लोग को सैलरी कम देते हैं, उन लोग के पास एक्सपीरियंस का बंडल है, तो ये सब चीज के लिए सीनियर सिटीजन आएंगे तो यंग जनरेशन को तो प्रॉब्लम होने वाली है। या सो यू नो अगेन ये माइंडसेट को शिफ्ट करने की जरूरत है। या करेक्ट, परफेक्टली राइट। कि हम अपने रिसोर्स को, बिकॉज ये एक ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं मैं बोलना चाहूंगी, इट्स अ ह्यूमन वैल्यू एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इन द कंट्री, no matter what the age, is a value. So this human value should be utilized and should be part of the mainstream work or mainstream India, which helps India to come up. But आपने मुझे एक बात बोली यहाँ पे कि कॉर्पोरेट में आफ्टर अ सर्टन एज वो नहीं लेते या पैसे कम देते हैं, पर हमारे पॉलिटिक्स में तो उल्टा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स का भी आप जाने थे तो ठीक है, क्योंकि दैट यू आल्सो नो एंड आई आल्सो नो कि 80-90 तक उन लोग अपना कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। सो दैट इज समथिंग। उन लोग एक टिकट के लिए उन लोग रातों भर रास्ते के ऊपर बैठे रहते हैं कि हमको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई भी होगा, कोई भी पार्टी, आई एम नॉट नेमिंग एनी पर्टिकुलर पार्टी, पर वो टिकट के लिए हम लोग रात भर बैठते हैं और करते हैं। लेकिन वही रात भर अगर उनके घर के लिए या फिर समाज के लिए बैठना होगा तो क्या बैठेंगे उन लोग? नहीं, क्योंकि यहाँ भी और एक उनके अंदर है कि 1-5 साल के अंदर उनके जो इनकम आती है वो कितनी बढ़ती है उन लोग को जो, और वो भी ऑफिशियल बढ़ने उन लोग के किससे पड़ते हैं। मतलब ये तो अभी कॉमन हो गया है, क्योंकि कोई भी सोशल काम के लिए, देशभक्ति के लिए है। ऐसे ऐसे लाल बहादुर शास्त्री या ऐसे कुछ हमारे गिने चुने जो नेता है उनका हम नाम दे सकते हैं। बाकी तो सब बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पब्लिक में बोलने में कुछ नो मेरे लिए तो ये बात इसलिए निकली कि आपने कहा कि कॉर्पोरेट में तो बोलते हैं बस अब ये एज हो गई, अब नहीं जॉब मिल सकती। पैंडेमिक के टाइम भी हो गया कि 40-50 एज ग्रुप में जो भी लोग हैं जिनकी जॉब्स गई हैं, शायद उनको अब दोबारा जॉब नहीं मिलेगी। बट पॉलिटिक्स में तो आप बूढ़े जितने भी हो जाएं, आपको कुछ भी हो जाए तो आप वापस आ सकते हैं। आप जेल में जाएं तभी भी आप आ सकते हैं वापस। वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है जेल में जाना। हाँ, तो पर ये दोहरी सी मानसिकता क्यों? अगर आपने किसी का रेप किया है तो भी आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, अगर आपने चोरी की है तो भी आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, अगर आपने कोई गलत काम किया और आप जेल भी गए हैं तो भी आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे अभी इनके लिए कौन आवाज उठाएगा? अगर हम और आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? नहीं, हम उठाएंगे तो 1 आदमी उठाएगा, 2 आदमी उठाएगा, 10 आदमी उठाएगा, लेकिन उनकी आवाज बंद हो जाएगी। कभी क्यों? कभी हमने सुना है नहीं, किसी ने ज्यादा उन लोग की जिंदगी खत्म हो गई है, मतलब उन लोग की लाइफ ही चली गई, उन लोग के फैमिली मेंबर को रोड एक्सीडेंट पे खलास कर दिया गया है, कौन बोलेगा? और दूसरी बात ये है कि कोई आना नहीं चाहता है, अगर कोई आना चाहता है तो उनको आने नहीं देते, कोई तो आना भी नहीं।
माहौल बना देते हैं, डर का माहौल बना देते एग्जैक्टली। अभी एक अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जहाँ अगर 100 मेंबर्स होंगे, वहाँ अगर बोलेंगे कि भाई सेक्रेटरी को करने के लिए कौन नाम चेयरमैन के लिए कौन बैठेंगे और उनको ज्यादा काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इन लोग को बनाने का है, पैसा बनाने का है, वो तो हमेशा जाके उन लोग को क्या करेंगे। तो ये चीज है, मतलब पॉलिटिक्स का तो बहुत ही पर हमें पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करनी चाहिए ना, क्योंकि पॉलिटिक्स से हम अफेक्टेड होते हैं और पॉलिटिक्स से हमारी कंट्री अफेक्टेड होती है और पॉलिटिक्स से हमारी दिनचर्या अफेक्टेड होती है, पॉलिटिक्स से हमारी बच्चे अफेक्टेड होते हैं। सो हमें उसकी बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं इनके बारे में आपको देता हूँ कि अभी पॉलिटिक्स अभी इतनी ये हो गई है कि सीनियर सिटीजन सो फार उन लोग इनमें ज्यादा पढ़ा रहे सो फार सेंट्रल बैंक कर रहा है, हमारे बैंक कर रहा है, बैंक के लिए अपग्रेड, पेंशन के लिए सन से वो सब चल रहे हैं, लेकिन अभी तक that is all in the paper. IBA, तो ये अभी इनके तो हमारी गुजर चुके हैं, कितने सीनियर जिन लोग को इनका लाभ नहीं मिला है, तो उनके लिए अभी देखे। सो जिमी सर, आप मुझे बताइए कि आपके 20 साल के काम में आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सा काम करने में आया और किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आया और क्यों आया? सबसे ज्यादा मजा जो आया वो पुष्पा फाउंडेशन पे, क्योंकि वहाँ मैंने जो मेरे प्रयत्न किए थे वो प्रयत्न के अनुसार हमने 2 लिंक का बुक ऑफ रिकॉर्ड बना दिए। ये लिंक का बुक ऑफ रिकॉर्ड हमारा नेशनल एंथम जो 100 साल हुए थे, तो वो हमने हमारे मेंबरों ने बनाए और उनके लिए लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम आ गया। लाफ्टर क्लब के अंदर था, वहां पे हमने बहुत ही कोशिश की थी और मीडिया को बुलाया था और हमने कॉरेस्पॉन्डेंस किया था लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर, और उनके बाद हमको वहाँ भी हमको मतलब 2 लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड हमको मिले। और दूसरा एज आई टोल्ड यू, ये हमारे जो सीनियर सिटीजन के जो हमारे पितामह है और वो जो है वो विनोबा भाटिया, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रणब मुखर्जी के हाथ से। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही उपलब्ध की बात थी, उनके लिए भी हमने बहुत कोशिश की थी और बातें, लेकिन क्या बोलते हैं यहाँ हमारे जो वीरू वालिया जो है फैमिली हमारे इन्वॉल्वमेंट में है। वन डोनर, अभी 10,000 सीनियर सिटीजनों को हम लोग जो रोज सुबह चाय कॉफी दूध देते हैं, उन लोग की एनुअल सही नहीं लेकिन लाइफ टाइम उन लोग के लिए 100 रुपीज हम लोग चार्ज करते हैं। शाम को आते हैं, सुख दुख एक दूसरे से बांटते हैं और ऐसा ही बोलूं 60 के बाद डिमेंशिया का कुछ असर सब में होता है, मेरे में भी है थोड़ा बहुत। राइट तो राइट। असर जो होता है तो वो एक बूढ़ा आएगा और वो उनके पास में बैठा हुआ आदमी के साथ बात करेगा, कहेगा कि हमारे टाइम के अंदर ये था, हमारे टाइम के अंदर ये था, ये सब बातें करेगा दूसरे को। दूसरे भी यही सवाल करेगा कि हाँ हम भी आए थे, बोरीवली में आए थे, तभी ये था, सोने का भाव 120 रुपए का था और हमने फ्लैट लिया था, उनका ये वैल्यू थी, और ये सब बात करके गुड नाइट करके वो चले जाएंगे और उनके बाद तो दूसरे दिन वो आएंगे, दूसरे दिन अजय राइट। एंजॉय ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हम लोग डर जाएंगे, दे एंजॉय वेरी वेल, वो भी उनकी बात है। तीसरे दिन आएंगे, तीसरे दिन लेकिन ये बात घर में नहीं चलती। घर में अगर ये जो बात हुई तो घर में बुढ़ा सत्या गया है, बुढ़ा के कट शुरू हो जाएगी वापस, प्लीज दादाजी, प्लीज पिताजी, वो तुम्हारी वो पुरानी बातें मत करना। लेकिन यहाँ दे आर गेटिंग समथिंग, एज आई टोल्ड यू, देयर शुड बी अ गुड लिसनर। यहाँ ये
और सबसे ज्यादा में ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारे मेंबरों के अंदर आपको देखने को मिलता है। जिमी सर, आप मुझे बताएं कि आप मुझे एक वो क्या बात बताना चाहेंगे आपके पूरे सेकेंड इनिंग्स में जो आपको बहुत खुशी देता है और आपको हर रोज सुबह वो उत्साह देता है कि आज आपने क्या करना है, वो क्या चीज है? एक मन के अंदर एक विश्वास होता है, एक लगन होती है, एक इच्छा होती है कि चलो हमने जब ये रास्ता चुना है, हर एक ने अपने अपने रास्ते चुने, हमने एक रास्ता चुना है सीनियर सिटीजन के लिए, तो सीनियर सिटीजन के लिए हमको क्या करना चाहिए। रात को हम सोचते हैं चलो कल क्या करने का है, तो पर्टिकुलरली सोसाइटी में कहने का है, वहाँ एक आदमी अकेला रहता है, चलो उनके पास जाएंगे, उनके पास बैठेंगे उनको। और ये चीज यहाँ नहीं, हम लोग कभी आपने पॉलिटिक्स की बात की, पॉलिटिक्स के अंदर हमारे यहाँ बोरीवली के अंदर अभी एक सुनील राणे है, तो यहाँ पे एमएलए है, बहुत ही सुंदर आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है। उन लोग का आपको पता होगा अथर्वा फाउंडेशन, अथर्वा फाउंडेशन आपने सुना है, दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर भी उनका बहुत अच्छा है। वो वहाँ के जो शहीदों की पत्नी है उन लोग के लिए वो सब काम करते हैं, वहाँ एम्बुलेंस की सेवा करते हैं, वहाँ बच्चों को, ये बच्चे लोग के लिए हम लोग बहुत ही करते हैं। वहाँ साइकिलिंग अभी हम लोग ने दी है, यहाँ बोरीवली के अंदर भी कितने लोगों को साइकिलिंग दी है, निस्वार्थ सेवा करते हैं। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर भी सब आप कहेंगे वैसा नहीं है। ये आदमी वो इतनी ऊंची पोस्ट पे है, फिर भी वो महीने में एक बार वो मेरे पे फोन करके पूछता है कि जिम्मे भाई कैसे हैं आप, ठीक है ना, कुछ काम होगा तो बोलना। सी दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर पॉलिटिशियन। तो ट्रू। पॉलिटिशियन ऐसे एक ब्रांड बना देंगे तो वो तो चलने वाला नहीं है। कभी ट्रू। कभी मतलब 100 आदमी के अंदर एक तो हीरा या एक तो मोती मिलते हैं ना, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको देता बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात से कि ऐसा नहीं है कि सभी खराब है, बट सिस्टम में थोड़ी सी और ठीक करने हूँ। की जरूरत, सिस्टम को थोड़ा तेल लेने की जरूरत है इंडिया में। और वो सिस्टम को तेल तभी मिलेगा जब हम कॉमन मैन अपनी आवाज उठाएगा और बोलेगा भी, और हमें करेक्ट, बोलना भी चाहिए। और हम रेक्स करमवीर में हमारा यही काम है कि हम बोलेंगे जो गलत है, राइट एवरी रॉन्ग हमारा मोटो है। तो और आप जैसे कर्मवीर जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनको सामने लाना और बताना कि यस देखो, लाइफ में एज इज नो बार, yeah, it is only a number game. इट्स जस्ट अ नंबर, एंड नो मैटर व्हाट यू वांट टू डू यू कैन डू इट एट एनी एज। इसीलिए हमारा रेक्स करमवीर में आप 7 साल की उम्र से लेके 75 तक भी देखते हैं एंड अबव भी देखते हैं, क्योंकि अभी भी यू आर पार्ट ऑफ इट। आप लास्ट टाइम 2019 में हमारे पास नहीं आ पाए थे, आपको महारत्ना मिलना है। तो Yeah. होपफुली हम यही इंशाल्लाह कि हम 2021 में अपना लाइव कॉन्क्लाइव करेंगे दिल्ली में, और आप जैसी इंस्पिरेशन को फिर बुलाएंगे और बात करेंगे। I mean, और I mean, I you will come. mean, You were not well last 2000 November, na? yeah. But that time I had an attack and I lost my wife also. Yes. तो मेरे को मैसेज भी आया था उनके बारे में कि तुम्हारा एक अवार्ड हमने रखा हुआ है करके रखा हुआ है, मैसेज। आपका अवार्ड रखा हुआ है, क्योंकि आपसे यूथ को, यंग लोगों को और बाकी सारे करमवीर, रेक्स करमवीर के फेलोज को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जेरी, जिमी सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि कोविड टाइम्स में सबके लिए बहुत मुश्किल टाइम्स है, यंग लोगों के लिए, वुमेन के लिए, ओल्ड लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल टाइम था, और आपने कोविड के टाइम में भी काम जारी रखा। तो मुझे उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, हमारा कोविड के टाइम के ऊपर हमारा ऑनलाइन हमारी जो ये थी हम्म, Zoom की, या इनके अंदर हम लोग ने डीओ के अंदर हम लोग की रेगुलर मीटिंग होती थी, हमारे कमेटी हम्म, मेंबरों की मीटिंग होती रहती थी। कहीं हम्म, किसी की जरूरत पड़ती थी, यहाँ किसी हम्म, का डेथ हुआ था, तो हम लोग डेथ जा नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ ऐसा था कि सीनियर सिटीजनों को कहीं भी जाने के लिए अलाउ नहीं है। अलाउड। तो हम्म, इसके लिए हम लोग को घर में ही रहना पड़ता था। लेकिन ऐसे के लिए क्या है, हमारे खुद के कितने मेंबर एक्सपायर हो गए हैं, तो हम लोग, तो ये हम लोग
उन लोग को ये करने के लिए हम लोग सिर्फ दुआ ही करते हैं कि भाई हमारे मेन हमारे डिग्रेड हमारे पुष्पा फाउंडेशन के हमारे जो एक अच्छे ये थे वो भी गुजर चुके हैं, एडवाइजर थे वो भी, और ये सब चल रहा है। लेकिन हमने कोविड के अंदर भी हमने हमारी जो ऑनलाइन की हमारी थी सुविधा, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे हमारी यहाँ थी, उन्होंने हमारे लिए बहुत ही काम अच्छा किया है। और एज आई टोल्ड यू कि कोविड के अंदर भी जिन लोग अफेक्टेड है उन लोग को हमने छुपा छुप मैंने पैसे की भी मदद की है। उन लोग को हमने घर पे बुलाया, नीचे हमारे वॉचमैन को कवर दे दिया कि उनको दिक्कत वही कि दाना पानी बंद हो गया, हम लोग का दाना पानी बंद हो गया था क्योंकि यहाँ से बॉम्बे के अंदर रेलवे ट्रेन बंद थी, मतलब हम लोग तो जो एज फैक्टर था वो हम लोग को बाहर जाने के लिए रोक लेता था। तो ये सब चीजों के लिए हमने अपने हिसाब से उन लोग को हेल्प करने के लिए हमने कोशिश की। ट्रू ट्रू ट्रू। जिमी सर, मुझे आप आखिर क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जो लोग आपको सुन रहे हैं और जो लोग आपको देख रहे हैं और जो लोग आपकी पूरी जिंदगी की स्टोरी सुन रहे हैं, आपकी फर्स्ट इनिंग्स कैसे आपने शुरू किया, फिर आपने कैसे 20 साल से रिटायरमेंट के बाद आप काम कर रहे हैं फॉर सीनियर सिटीजन, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो उनको यही मैसेज चाहेंगे कि एक तो देख लो कि यू आर नॉट ओल्ड, एज इज ओनली अ नंबर गेम। क्योंकि एक छोटे से बच्चे को भी पूछेंगे कि हाँ ओल्ड आर यू, तो वो भी ओल्ड वर्ड आ जाता है छोटे बच्चे के लिए भी। आपने मार्क किया है तो हाउ ओल्ड आर यू अगर एक बच्चे को बोलेंगे 2 साल के 3 साल को 3 साल वाले बच्चे को तो ओल्ड आ जाता है। और हमारे को बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू तो हम बोलेंगे 82 रनिंग। सो गेम ऑफ नंबर। So you are 82 young. Pardon? You are 82 young. Yeah, 82. So we say that only. 82 का 28 बना देते हैं। Okay. तो ये और in spite of that, जो still I have got lot of project in my hand. तो ये जो खुलेगा और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो हमें बहुत कुछ काम करना है अभी बाकी। बिल्कुल, बहुत काम, आप जैसे काम की बहुत जरूरत भी है। Thank you very much. Thank you very much. So thank you so much, Jimmy sir, to be, to have come on board and being part of this inspiration. And we are looking forward to welcome you in the live conclave, which inshallah, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम 2021 आपको बिल्कुल हम मिलेंगे. And thank you so much for all this time and this conversation and this inspiration that you've given us today. Look forward to seeing you in person, and all the very best for all the work that you. Thank you very much. Thanks a lot. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you so much. We all need your blessings. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Namaste. नमस्ते यार, ये जेनी का वर्ड है नमस्ते। देखिए, नमस्ते तो हमारा वर्ड है रेक्स करमवीर पे, उसके बगैर तो हम शुरू भी नहीं करते और खत्म भी नहीं करते. Because the hero in me and the God in me and everything that is within me salutes everything that is within you. And you are a very divine child. मैं तो बोलूँगा because I am also a channel to be very frank, आपको बोलेंगे तो Thank you so much. Thank you. Namaste. Namaste.